السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز دوستوں، بزرگوں، کیسے ہیں؟ امید ہے اللہ کا ذات ہے کہ آپ لوگ خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ عز و جل آپ لوگ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم 1 2 3 4 5 نہیں بلکہ 7 8 10 آپ خود کاؤنٹ کرتے چلے جائیں۔ انشاءاللہ میرے ذہن میں جو بھی آتے رہے گا میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتا رہوں گا۔ اسم اعظم یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ آپ اسم اعظم یا اللہ کو سنتے ہوں گے، جانتے ہوں گے اور پہچانتے ہوں گے۔ یا اللہ جو نام ہے نا، اللہ تبارک تعالیٰ کے ذاتی اور صفاتی نام میں سے ایک نام ہے یا اللہ۔ اور یا اللہ کے فائدے اتنے زیادہ ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ اور جو میں ویڈیو بتا رہا ہوں نا، یہ ایوری ڈے میں وظائف اسی چینل پہ ایچ ڈی ایجوکیشن پہ آپ کو صبح کے 8 بجے ملیں گے، وظائف والی ویڈیو، تو آپ ضرور دیکھیے گا اور استعمال کیجیے گا۔ یا اللہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے یا اللہ۔ اب یا اللہ کا جو وظیفہ ہے، میں نے عمل پہلے شیئر کیا تھا، جو عامل بن جاتا ہے نا، جو اپنے اسم یا اللہ کو اپنے دل میں سمجھ لیتا ہے، وہ دنیا کا سب سے بڑا عامل کہلاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں کوئی آ نہیں سکتا۔ لیکن کچھ لوگ کا کہنا ہوگا کہ کیا اگر کوئی عامل نہ بننا چاہے تو میں آپ کو اسم اعظم بتا دے رہا ہوں یا اللہ کا، اس کے پڑھنے کا فائدے حاصل کرا دے رہا ہوں، بتا دے رہا ہوں۔ آپ ذہن نشی کریں، آپ اپنے ذہن میں ڈالیں یہ باتیں، کیونکہ یا اللہ یہ اسم اعظم ایسا اسم اعظم ہے جسے پڑھنے سے کتابوں میں آتا ہے، اور مفسرین کرام تفسیر کرتے ہیں اور لکھتے کتابوں میں ہیں کہ کوئی شخص اگر 1000 ٹائمز اونلی 1000 مرتبہ، کتنے مرتبہ؟ اونلی 1000 ٹائمز 1000 مرتبہ ایوری ڈے، روزانہ، جو کہ 15 منٹ کا سمے لگے گا پڑھنے میں، زیادہ میں بول دیا ہوں، کم بھی سمے لگ سکتے ہیں، جو 15 منٹ کے وقت نکال لیں، اور وقت نکالنے کے بعد 15 منٹ اور 1000 مرتبہ وہ اسم اعظم یا اللہ کا ورد کرے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ پڑھتے رہیں۔ اب جیسے یا اللہ کا ذکر کریں گے نا، انشاءاللہ تبارک تعالی آپ کا جسم جو ہے وہ صاف ستھرا ہو جائے گا، آپ کا مزاج فریش ہو جائے گا، آپ کا قلب صاف ہو جائے گا، روحانی قوت بڑھنا شروع ہو جائے گا، روحانی قوت اندر سے بہت زیادہ بڑھنا شروع ہو جائے گا، بڑھے گا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کتابوں میں آتا ہے کہ مستجاب الدعوات بن جائیں گے۔ آپ کیا بن جائیں گے؟ مستجاب الدعوات، اور بہت ساری چیز جو اس سے فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ یکمن علم لادمن عقل باید، میں نے کتاب میں پڑھا ہے فارسی کی کتاب میں، کہ اگر تھوڑا سا بھی عقل ہے نا، اگر عقل لگاتے ہیں تو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ یکمن علم رادمن عقل باید، علم اتنا سارا، یکمن علم حاصل کرنے کے لیے اتنا سا عقل کی ضرورت ہوتی ہے، اور عقل آپ کے پاس ہے، میں جانتا ہوں، آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو آپ کیا کریں؟ سب سے پہلے اسم اعظم کو یا اللہ کو 1000 مرتبہ پڑھیں گے، یہ فائدہ ہو جائیں گے۔ اور اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ میں 1000 مرتبہ نہ پڑھوں، کچھ کم تعداد میں پڑھوں، تو ایوری ڈے، روزانہ، اگر کوئی شخص 100 ٹائمز، اونلی 100 ٹائمز، 100 مرتبہ جیسے پڑھتا ہے نا، تو یقین مانے 100 مرتبہ جو پڑھتا ہے اس کا جو فضیلت یہ ہے کہ روزانہ اگر 100 مرتبہ کوئی پڑھ لے 1.5 منٹ نکال کر، کیونکہ 1.5 منٹ کا سمے لگے گا، 1.5 سے 2 منٹ کا سمے، یہ 1.5 سے 2 منٹ کا سمے کو نکال کر یا اللہ کا ذکر کر لے، صرف اسے 100 دانے پڑھے، 100 مرتبہ پڑھے، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ یقین مانیں اس کا جو جسم ہے وہ اندر سے صاف ستھرا ہو جائے گا، قلب کشادہ ہو جائے گا، اور جسمانی بیماریوں سے وبا سے محفوظ ہو جائے گا، تمام طرح بلاؤں سے، وبا سے محفوظ رہیں گے وہ شخص۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ میرے جسمانی مرض ختم ہو جائے، میرا قلب صاف ہو جائے، مطمئن رہے میرا جسم اور میرا قلب مطمئن رہے، تو آپ یا اللہ کا ذکر 100 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ یقین کامل کے ساتھ پڑھیں، آپ کا دل صاف ہو جائے گا، کشادہ ہو جائے گا، کشادہ یعنی صاف ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اب قلب ہے وہ کشادہ ہو جائے گا، تو اسے پڑھیں، بہت زیادہ فائدہ ہے۔ اور نیکسٹ اسٹیپ اگر ہم آگے بڑھتے ہیں، تھوڑا سا اور ہم بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے گاؤں محلے میں، قصبے میں، احباب میں، رشتہ دار میں، آپ کے گھر میں کوئی ایسا بچہ ہو جو پڑھتا تو خوب ہو، یاد نہیں ہوتا ہو اسے، یا پڑھنے کی کوشش نہیں کر رہا ہو، یا ذہن کند ہو، ٹھیک ہے، اسے عقل میں جو بات نہیں آ رہی ہو، سمجھانے کی کچھ کوشش کر رہے اور سمجھ وہ کچھ رہا ہے،
समझा समझा कर थक चुके हैं, बच्चा समझने के नाम नहीं ले रहा है, और ज़हन तो ना के बराबर है, पढ़ता कुछ है सुनाता कुछ है, याद ही नहीं रहता उससे। आपको मैं ये एक ऐसा वजीफा बता दे रहा हूँ, ये आप पेरेंट्स ही करेंगे, याद रहे। ऐसा नहीं कि बच्चों को कहेंगे भाई कर ले, कर सकते बच्चे, अगर ऐसा बच्चे होशियार तो। अब बच्चे के नहीं है, जरूरी नहीं कि बच्चे के लिए ही हो। अगर आपका ही ज़हन कुंद हो, आपका याददाश्त कमजोर हो, आप बहुत जल्द भूल जाते हो बातें, तो ये कर ले, अपने घर में किसी को कर दे, इंशाअल्लाह तबारक तआला। आप यकीन माने, यकीन कामिल के साथ करते हैं तो ज़हन कुशादा हो जाएगा, और जो बातें पढ़ेंगे याद करेंगे वो हमेशा हमेशा के लिए, सालों साल के लिए याद रहने वाली चीज़ है। तो वज़ाइफ किस तरीके से करना है, इसका जो वजीफा ये है, सिर्फ और सिर्फ आपने करना है कि ताज़ा रोटी को सुबह के टाइम में बनाना है। आप गंदम की रोटी बनाएं, गेहूं की रोटी बनाएं, और गेहूं की रोटी बनाने के बाद एक रोटी ले, उस पे लिखे या अल्लाह, कितने मरतबा? 7 मरतबा। कितने मरतबा लिखना है आपने? 7 टाइम्स, 7 मरतबा या अल्लाह लिखे। जैसे ही आप या अल्लाह 7 मरतबा लिख दिए, 7 मरतबा लिखने के बाद आप करें उस रोटी को, जिसका ज़हन कुंद हो, जिसका दिमाग कमज़ोर हो, जिसे याद नहीं रहती हो बातें, उसे आप खिलाएं। मगर खिलाएंगे कब? सुबह के वक्त, निहार मुंह। निहार मुंह किसे कहते हैं? सोकर उठा उसके बाद कुछ खाया पिया ना हो, उसे निहार मुंह कहते हैं। और उसी वक्त ये रोटी खिलाना है आपने, उसी वक्त। आप करें तो रोटी पे शहद लगाकर खिला दें, बहुत ज़्यादा फायदे हैं इसके, शहद लगा के खिला दें। तो आप क्या करें? निहार मुंह कितने दिन तक? कम से कम 11 या 21 दिन तक इसे कंटिन्यूस खिलाएं। 7 दिन तक भी खिला सकते हैं, या 11 दिन या 21 दिन। कंटिन्यू मैं तो कहूँगा 21 दिन आप खिलाएं। 21 दिन में 21 रोटी बनाने पड़ेंगे आपको। और निहार मुंह यानी कि बासी मुंह आपको खिलाना है, ज़हन नशी कर ले। और इसमें आज़म या अल्लाह को अगर कोई विर्द करता है, ठीक है, कितने मरतबा? 66 टाइम, 66 मरतबा आजमता है। 66 मरतबा पढ़े, और एक गिलास पानी लिए और उसमें फूंक मार दिए, दम कर दिए। एक गिलास पानी पे क्या किए? दम कर दिए। जैसे एक गिलास पानी लेकर के आप दम कर देते हैं गिलास पानी पे, और मरीज को देते हैं, लीजिए पीजिए। अब मरीज को देते हैं, आसिफ जद कोई मरीज हो ना, आसिफ जद जो मरीज हो, असरात जो वो खत्म हो जाएंगे, भाग जाएंगे, खत्म, गायब। जादू, टोना टोटका, आसिर राजा, जिन जिन्नात, भूत प्रेत, बहुत सारे इलाज में काम करता है। जुबान में तासीर हो तो बहुत सारे ये काम करता है। तो 66 मरतबा पढ़कर आप इसे यूज कर सकते हैं। और कोई शख्स ये करे कि पढ़कर मरीज को पिला दें, जिसको जिस्मानी मर्ज हो, बुखार वगैरह हो, इंशाअल्लाह उसमें भी शिफा मिलती है, जिस्मानी मर्ज में भी शिफा मिलती है। और अगर कोई ये शख्स ये करे कि एक रिका भी ले, एक प्याला ले, और उस पर या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, जहां तक महदूद, जहां तक मुमकिन हो पूरी में लिखवा दे, एक भी जगह खाली ना हो रहे, जहां तक मुमकिन हो सके वहां तक लिखवाने की कोशिश करे, कमी वेशी ना करे। ऐसे नहीं गिनती करना, काउंटिंग की जरूरत नहीं है, कोई काउंटिंग नहीं करना इसमें। पूरे प्याले के अंदर लिखवा दे या अल्लाह, और लिखाने के बाद उसमें पानी डालकर किसी भी आसिफ जर्द मरीज को, जिसपे असरात हो, जिन हो, जिन्नात हो, भूत होता नहीं, असरात जो भी खबीस अरवाह कह रहा हूँ, खबीस बद हो, ठीक है, जो भी खबीस बद हो, आप उसे पिला दे, दीजिए पानी पीने के लिए, उसमें पानी डाल दीजिए, दीजिए पीने के लिए प्याला में डालकर, या प्याला में धो करके, ऐसा नहीं उसी प्याले को पीने के लिए दे दीजिए। प्याला से पानी में डाल के प्याला को धुल दिए, उसी पानी को प्याला में, और किसी गिलास वगैरह में डाल दिए, उसको पानी को दे दे पीने के लिए। आप यकीन माने इंशाअल्लाह तबारक तआला उसके ऊपर जो आसिफ था, जो अरवाह बद, ठीक है, जो खबीस वगैरह था, वो जल कर राख हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, जड़ से खत्म। अब बचेगा नहीं उसमें, यकीन हो तब, बचेगा नहीं, खत्म हो जाएगा। एक बात और मैं बता दूं, अगर इसी तरीके से कोई ऐसा मर्द में मुब्तला हो, कोई मरीज हो ऐसा जिसको शिफा याबी नहीं मिल रही हो, दवा तो खूब खाता हो, सेहत याब नहीं होता हो ना, तो उसको अगर कंटिन्यूस एवरीडे रोजाना इस पानी को यूज करे, कटोरे के पानी में, जैसे कि लिखा हुआ है या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह लिखा हुआ है, उस प्याली में पानी को रखकर धुल कर उस पानी को पिलाए एवरीडे, रोजाना, इंशाअल्लाह तबारक तआला उसकी जो बीमारी है ना वो खत्म होना शुरू हो जाएगा। बीमारी ना के बराबर है, खत्म होना, देखेंगे आप खुद ही कि आप बीमारी पहली
किस हद तक था और किस हद तक अभी है। शिफा याबी नहीं मिल रही थी, अब शिफा होना शुरू हुआ था। बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। इसमें आज़म या अल्लाह का विर्द आप करें और अपने दोस्त यार अहबाब रिश्तेदार साथी सभी को शेयर करें, बताएं, सदका जारिया समझ के इस वीडियो को शेयर करें। आप किसी के साथ मिलते जुलते उठते बैठते उसको भी बताएं ये बातें, या अल्लाह का जिक्र करो, विर्द करो, मुसीबत से निकल जाओगे, मुसीबत परेशानियों का हल है या अल्लाह। क्योंकि कोई शख्स या अल्लाह एक मरतबा कहता है, अल्लाह ताला उसकी तरफ रहमत की निगाह 70 मरतबा देखता है और 70 मरतबा का नाम लेता है। आप यकीन करें कि आप अल्लाह का नाम एक मरतबा लेंगे, आपका नाम अल्लाह 70 मरतबा आसमानों में लेगा। आप अगर तन्हाई में लेंगे तो अल्लाह आपको तन्हाई में नाम लेगा, और अगर आप महफिल में अल्लाह के नाम लेते हैं तो अल्लाह ताला फरिश्तों के महफिल में आपके नाम लेगा। ठीक है, आप या अल्लाह का जिक्र करें, विर्द में रखें और तमाम आलम इस्लाम के लिए दुआ करें। हम गुनहगारों के लिए भी दुआ करें, इंशाअल्लाह फ़ायदा हासिल करते रहिए। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, यहाँ तक पहुँच गए हैं तो, और लाइक नहीं की तो कर लीजिएगा, फ़ायदा होगा, इससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है। और वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिए। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स और भी चैनल की तरह बंद नहीं है ना हमारा, खुला हुआ है। तो लिखने में क्या जाता है, सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह, आमीन ज़रूर लिखें, या नेक्स्ट वज़ाइफ करके ज़रूर लिखें। इंशाअल्लाह ताला यकीन है आप ज़रूर लिखेंगे। चलिए इस वीडियो को हम ये इख्तिताम करते हैं, और अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। और काउंटिंग के लिए एक मैं बार बात बताना भूल गया था, जो मैं बता दे रहा हूँ। काउंटिंग के लिए 1000 मरतबा हो या 100 मरतबा हो, आप इस्लाम 506 यहाँ पे देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसे जाकर के आप डाउनलोड करें। इंशाअल्लाह इस्लाम 506 आपको डाउनलोड करना है। खुद का एप्लीकेशन, भैया का, मेरा छोटा भाई का एप्लीकेशन, ठीक है, छोटा भाई का ध्यान दीजिएगा। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और इसमें तस्वीर काउंटर है अलग अलग तरीके का, जिससे आप यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। यूज़ करें, इस्तेमाल करें, और तरीका इंशाअल्लाह ताला इस 4 वीडियो में समझाऊंगा। इसे यूज़ किस तरीके से करना है, 3 तस्वीर, और किस तरीके से इसे यूज़ किया जाएगा। इस वीडियो को मैं इख्तिताम करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अगर आप इरशाद उल कादरी से बात करना चाहते हैं तो दिए गए QR कोड को स्कैन करें या डिस्क्रिप्शन के लिंक से अपना अपॉइंटमेंट बुक करें।